Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स में controversial comedian असम पुलिस असम रेना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है ही नहीं। माफ करना चाहिए। I've come to understand that Same had a lot of legal issues based on season 1. And I believe this was all over a joke, like bad jokes, like or extreme jokes, or supposedly extreme jokes. I've not even actually heard the joke. People are saying if I watch this, I'm going to get a lot more context as to what happened and his situation. So you know what? Let's just get straight into it, bro. Should we begin India's Got Talent? Let's go! Samay is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय does. इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो फोड़ ही रहे। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का। से दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। Okay, bro, I have another question. Would you rather People were saying Supreme Court season observed 1 was that crazy. Such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स में controversial comedian? Death threats? असम रेना के पुणे वाले घर पहुंच गई। What? Getting death threats? Like, what the hell did he say? It couldn't have been that bad. Surely it could not have been that bad, man. And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these, whatever. I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, But he's still alive. Let's go. He is a funny guy though. From what I've seen so far, he's very quick, very witty. you know, मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ मैं। They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी मेन एक्ट बनूंगा। Wow, it's so cute to me, you know, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से। Wait, hold up. Let me see something, guys. Kushal, I don't want to miss too much context, so I'm gonna do a few searches if I can. Okay, Kushal's another comedian. कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक एफआईआर के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स में। Okay, so Bare Biceps is Ranveer Al-Badia. He named himself that because he wanted an edgy, memorable name for his fitness channel. Everybody should retrospect within themselves as to what they are speaking, and this is not an absolute right. In fact, various provisions of the BNS or the Bharatiya Nyaya Sanhita, where all of these sections go up to 3 years of 3 years of imprisonment or a fine. However, all these sections are bailable in nature. With prison time, really though? Like really? Come on, guys. Come on. Are being said to be misogynistic and something that it falls in the category of obscene as well. So you guys are telling me this whole massive thing is because he asked a would you rather question? Don't get me wrong, it's one of the crazier questions. Yeah. Would you rather watch your parents have or join once and stop it forever? That's a classic. We've all heard it before. But don't get me wrong, it probably was a very bad idea from him to say it on such a nationally watched show with the what am I trying to say? The brand he has. He's got a brand around fitness and motivation, stuff like that. So people are like, this shouldn't be coming out of your mouth. Beer biceps man showed the monk who sold my Ferrari. Yeah, those legal fees are crazy. 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा।
पर मुझे लगा था इसलिए होगा. And also, I know FIR is the first incident report, you know, the initial reports against whatever crime committed. पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे. चुपचाप कोने में बैठा हुआ था. हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं भाई साहब. That is sad though. ये साल क्या गया है मेरा. ब्रो, oh my god man, February का महीना, fucking hell bro, hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने हमको. Politicians, celebrities, सुनील पाल. सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें. कपिल शर्मा से सीखें. Sunil Pal is an Indian stand-up comedian, actor and voice actor. कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे. कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव. ये सुनील पाल बीच में आ रहा था. क्या चल रहा था यार. ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में. ये क्या बातें हुई हैं इस शो में. मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे. कौन बुलाया तेरे को भाई. सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने. सब. शक्तिमान आ गया था यार. शक्तिमान, रियली. शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार. सॉरी शक्तिमान. बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के. They shouldn't be watching तुम में it. से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे. Hey, हर hey. अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया. तूने What? बच्चे मारे हैं. You have killed children with the show. What? What show? Yo, what show was he conducting, bro? That's crazy. But this is what I'm saying though. Firstly, kids aren't even meant to be watching it in the first place. But I understand it's going to get to the audience somehow, you know, YouTube shorts and clips, and kids will watch it. But ultimately, kids shouldn't be watching it. Right? But anyways, guys, how many shows out there are there that are 50 times worse than that one comment, bro? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार. Fucking everybody. For what? For a fucking joke that people didn't like. इतना थोड़ी करना होता है यार. I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो. That's what I'm saying though. Fucking ठीक है यार. बोल दिया कुछ बियर वाइसर्स ने गंदी बात कर दी यार. कौन नहीं करता. तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी. मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था. याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर. आई नो. सुबह के 7 बज रहे थे. मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर. मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट. तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को. तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया. और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखे मैंने. 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा. I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया. अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे. तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से. I will show you what a true comedian is. वो और भड़क गई. बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती. There has to be some accountability. This is not fair. But मैं बता दूं ऐसा नहीं है. Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं.
मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं। वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समझ रहा है। दैट इज द पनिशमेंट यू गेट। ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़। इतना थोड़ी होता है। No, but honestly though, why is it so extreme? Like, that response was just disproportionate to the fullest extent, bro. It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना। It's a tough one to defend. Yo, how do you actually defend that joke though? There's no angle you can come from. Like, yeah, I mean, if you think about it, it's not a bad question, bro. It's bad in every way you could possibly think about it. But at the same time, it's a joke, man. It's like, you know what I mean? मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा, मैं छोड़ो यार आराम, वो घटिया आदमी है बियर भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में। माँ बाप को या देखोगे तो क्या रहे भाई। बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। नया आसन मत बना, दोनों मिक्स करके। Hey, come on, bro. You could be a horny monk. लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? He's just a horny monk, man. उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? See, I don't know if you know this or not, but तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, comedians, creators, actors, celebrities, public figures, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR। Yo, that's what I'm trying to say though. Everybody in their normal day-to-day lives has heard this joke. At least I have anyways, and I know many people probably have. And we all say things to a similar nature. We've all done it, we've all heard it, bro. Like, it's nothing new. Like I said, it's just because he's put it on such a global scale. You're going to have those few people who really grab onto it and be like, yep, you're getting cancelled. Like, I know for a fact I would have at least 10 FIRs on me per week, bro. Per week. Easily. इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट is not a platform to showcase your art. In India, internet is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ।
किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. But yeah, I mean, yeah, he's speaking facts though. I mean, from what I've heard, it is really hard to speak your mind in India because you will get cancelled, bro. People will come for you. Like, there's a lot of censorship. समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। Let's change it up a bit. कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूं, यहां एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। Smart, man. He's very smart with his comedy right now, though. That's real. So a non-vegetarian can eat veg, but a vegetarian can't eat meat, though. Hey, they're two different things, my guy. If you're bad, being good will be looked at as, oh, okay, he's being good. If you're good, being bad is like, oh, so this is who you are, huh? All right, cancel him. वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट, सब देखते थे। पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया That's पुलिस wild. स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे। Bro, like, is that even allowed, though? Like, seriously. The editor, though. Come on, man. Like, what did they even arrest him for? Being involved in the production of what? A joke? Like, really? और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को, वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी, कोई भी कुछ भी बोल देता था। कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही।
क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। ऐसा क्यों बोला? You know what? This guy is actually good, man. He's real. I like him because he's just real. You know, like jokes, like people say jokes about you, and it's like, yeah, you'll laugh about it. You know what I mean? But like, sometimes there's truth hidden behind those jokes that will touch your insecurities, bro. You know what I mean? You're like, oh damn, why did he say that? But you know what, man? I'm sure I get it though, because you know what? I've even made videos in the past, just normal reaction videos, bro, just nothing crazy like he does. And sometimes you gotta be careful with what you say, because you could touch the wrong people. You know what I mean? You could say something that doesn't come across right, and bro, like you start getting into back and forths with people, and yeah, you try, like, some people just aren't going to understand you. Yeah, it's a fine balance, man. Being an influencer creator is a fine balance that you have to find. You know, to keep most people happy, you're always gonna have haters, regardless. But you need to keep most people happy, most people entertained. लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है, और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। They would say the worst things to people. People have cried and left the panel midway. फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प। समय बढ़िया बंदा है वो, बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रेकी मारने के लिए, बियर बाइसेप से कमरे में गया। वो खुश था तब, वो कर रहा था वू! वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? बस अपूर्वा ने बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे ही उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। No, but let's be honest though. How do you console somebody in that situation? Like you can't, bro. It's just you know, be creative. What do you say, man? पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह। What's bothering you? I am a brother. लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू? लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार।
वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें। पता नहीं कहां होगी, वो भाग रहा है। आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा, यू आर राइट, आई एम अ प्रोफेशनल कॉमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। What did she do, guys? मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई। फिर वो, मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चला पूर्वा, कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड जली भाई, बड़ी जेलसी हुई यार। क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो, बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. Now, but this is what I'm saying though. That's just a natural feistiness that a woman should have, really. Like, I think generally speaking, you should be able. It's not really comedy. It's just naturally you should defend yourself in that way. But you know, it's funny. Also, when somebody does it in that way. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया।
some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया. अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटनी थी. मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ हटाओ, कर रहा हूं, कम कर रहा हूं. 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं. अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से. मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था. Oh, nah, come on, bro. No way. No way. Nah, that's और crazy. इसके अलावा भी That's कई made it- अंटशंट सवाल. Bro, that's just made it so much worse. Why is he asking it 8 times, though? Oh, man. So he's asking it to every contestant. Why? Why? Like, no. Come on. सवाल पूछे थे उसने. तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, Let me keep मैंने one in कहा, for ये तो him. बहुत गंदी बातें करी हैं इसने. चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं. तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना. मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार. Bro, imagine he didn't edit out all the rest. Can you imagine how crazy that would be? Like, this guy would be in prison right now. हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में. 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में. हम उतरे, मैं और बलराज. बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज El father. he doesn't respect his family. 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके. मैं निकला और गड्डी लेके. हम गए होटल रूम. मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए. पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं. दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया. ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई. मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल. तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया. बोला समय कांड हो गया है. मैं कहा क्या हो गया है. कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है. मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट. तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था. ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में. मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का. 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ. मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे. दिस विल गो अवे. कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में. मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें, तो क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का. मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने. ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं. These are the influencers, shame on them. अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं. ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं. शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं. हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं. लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे. वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं. हम बस लोगों को भटका रहे हैं. मीडिया सेम टीम. फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार.
मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपिया लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं कर रहा था शो में, भाई क्या कर रहा है यार। हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा। हम तो शो करने चले गए, हमारे सियाटल में 2 शो थे। मैं शो करने निकला, पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। Has a full house. मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा। Shuffle. रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू। मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने, फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई दिस टू शैल पास। इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, they want a hug, they want you to say कि what are you so want, now what you are, know. how are you feeling, ask, Now don't you know, give. now you know, huh? हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, this month free। Yeah, he needed that one. मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे। मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। मैम कह रही समय प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू। एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया, ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन,
कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा। कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरा। Guys, let me know a bit about that place. Is it a bad place to live or something? I'm assuming so, right? Obviously. आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरा। My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। वहां पे वो 15,000 रुपए कमाते थे। तब DD कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली। बट उनका मन नहीं लगा वहां पे क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वाज बोर्न एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी। And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था HPS and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी। हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की। बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड। कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. Now that's W father. Balraj, take some lessons, bro. और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। मे बी बिकॉज आई वाज जस्ट द डिफरेंट किड, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। Shining in the class. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid and for fucking years, the first whole week वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे। मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to that school. That's crazy, man. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था, पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम, मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। उन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही। Most important. यहां भी पिटूं, वहां भी पिटूं। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था। मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। मैं कहा क्रेजी, कह रही है शर्ट कैसे फट गई तेरी। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आप कभी? तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा तुझे। Deep, man. That's deep. That's deep. Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है। Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं We are with you. मैं कहा no need. I am doing great.
वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम, सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा ये उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड, मेरा फोन गर्म हो चुका था, आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए, और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बार वो ट्रायंगल वाला, इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। जॉबलेस। आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूं अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन। मैंने फोन बंद किया, उनने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया, हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उन्होंने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बार में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसिनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहां है इंडियंस। कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहां है भाई। नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। Hey man, they've got a massive population. What do you expect, bro? What do you expect? Fuck it, मैं मास्क लाके बैठ गया अंदर। पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या समय। कह रहा है समय भाई, ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई, उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार। तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड। तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। Yo, कह रहा है but that's a legend of a dealer though. That's a raw one though. Like he's like, fuck my work, bro. Like, I gotta let you know, like this is unfair. कह रहा है he has 3 FIRs on him. मुझे भी तभी मालूम चला है। मैं कहा क्या। कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार। मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR। आसाम के CM ने ही कर दिया है। डूड, जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं. I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया. But why was he getting so much abuse though? Like he wasn't even the one who said it. Like that's crazy, man. Nah, this is man. You know what? W Samir, bro, for just persevering and keeping strong and keeping it moving, bro. He deserves his success. मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है. I swear, ये सब सपना है.
मैं चीजें देख रहा हूं एंड I am unable to see if it's real or not. I am touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते. I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. कह रहा भाई this too shall. मैं कहा तू चुप रहा. तोता है क्या तू? चुप बैठ यार. इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ. मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा, तो आई कॉल्ड हिम बैक. फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट. मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से. He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स. यहां कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है. तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है. कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी. दिस इज योर ओनली चांस. वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी. यू हैव टू एक्ट राइट नाउ. कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स. मेरा कोई कांटेक्ट नहीं. दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को. दीपक कलाल कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं. मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ. अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे. बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब. Bro, yeah, I know about Deepak Kalal, guys. That's the last person you want calling you at that moment. The last person. तू मत दे साथ. अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे. बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे. दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त. ये कमाया है मैंने इस जीवन में. कुछ तो गलत कर रहा हूं यार. मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का. मैं जब KBC में गया था उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था. उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना. मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो. मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड. याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर. सर प्लीज कुछ करो ना सर. सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज. कह रहे हैं व्हाट हैपेंड. मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग. मैं कहा लव. मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा. तभी मौका पहुंच रहा. I don't know who that one is, guys. That one over my head. इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप. इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो. इससे खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में. इसके मुंह में खीर डालो. किस मुंह से भेजता हूं. मैंने कहा सर इट्स ओके. पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार. बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे. उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे. जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे. उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक बढ़िया बनता है. अरे जय जय जय. अरे ऐश्वर्या आ जाए यार. सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ. सॉरी अमिताभ जी. Oh man, वो रात, the worst night of my life. कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा. कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी. लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए. कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है. जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन. और डर लग रहा है. मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे. इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं. यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए. किलो जूल्स है उनकी रगों में. वो मार रहे हैं मेरी फुल एनर्जी से. TRP चूस रहे मेरे से.
Giving it to you मैं raw. बस मरा पड़ा हूँ बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आ जाता है रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है। मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels. एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। Oh man, that's crazy. और Man. रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। What a profound खुले thought. आम चल रहा है। एक न्यूज crazy, मैंने man. देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे और मेरी गांड फट गई क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। मैंने कहा ये किसके घर पे पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना। Guys, what's a PG? I'm assuming it's like some sort of student accommodation, but I don't know what it stands for. But man, even as police, like, surely they were thinking, like, why are we even wasting our time with this? Because, like, that's just, like, over a joke. That wasn't even him. Is that even, like, lawful? Obviously, I don't know about the legislation in India. But, like, how could you possibly get arrested for that? Especially when it's not even you who said the thing. That's so offensive. You know, like, insane. Insane. उनकी जो भटी होगी भाई, पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई भाई। तूने कहां से मंगाया था माल? आसाम पुलिस आ गई भाई। आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रे केला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। I didn't even get that. I didn't clock that. 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और I tell you, never try this at home. Nah, that's crazy. मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट। उसको मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying.
Just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं. वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है. दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार. How to get out of this? Fucking scared to death. What is happening? Cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज हो सकती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया. मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया. मैंने कहा हेलो. कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ मम्मी, ये सब तो होते रहता है यार. कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने फोन काटा. In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूँ भाई. मैं क्यों छुपा रहा हूँ? She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे. मैं यहाँ रो रहा हूँ. She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी. मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया. उनकी आंखें सूजी हुई थी. I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे. बाप मीम भेज रहा है. माँ कसम. Yo, that sounds about right though. Dad sending him memes saying don't drop the soap, my boy. माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे. टिंग 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 टिंग. पापा क्या भेज? पापा मीम भेज रहे हैं. तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही. सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा. ये लो मीम, मैं ठीक हूं. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना. वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको. जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं. प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे. तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली. बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूं. ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा. इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है अंदर. मैंने कहा मैं आपको करता हूं यार, एक सेकंड. मैंने पापा को, पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार. कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया. सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग. तन्मय भाई की भी फट गई थी. 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया. चौथे दिन उनकी गांड फट गई. ये क्या हो गया भाई? सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में. जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना. एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है. एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो. तो किसको देखोगे भाई? हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है. कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे. तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार. तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. And my dad was such a rock in that moment. He said रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है. The show exists because of you. You don't exist because of the show. इतनी पर्सपेक्टिव दी. उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम. हाइज एंड लोज आएंगे. यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस. ही वाज सच अ रॉक. ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ. ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने. मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा पापा यार. 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे. मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड. मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच. कह रहे चलो गुड नाइट. फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, है ना. पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता ना लव की बातें करना, है कि नहीं. मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा गल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा.
कभी पापा को किया है? पापा Nah. Of course. होता है That's तो different, अजीब bro. सा लगता है ना, सोच के भी एकदम कभी, है ना लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। This is the end of that road. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो, ना बोलो, मुंह करो, मुंह वो करो, स्क्रैच करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। कम क्लोज टू योर पेरेंट्स, नॉट लाइक बियर बाइसेप्स। ऊपर ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल यूएस टूर एवर। वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए। कोई टाइम है भाई शराबें खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई। कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू, ले आ जा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया, शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, ये कैसे मिसिंग है? मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। You gotta check that one out. Let me see. Oh, so Kunal called a deputy chief minister a traitor during a stand-up gig. Oh, okay, I see. Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है। What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा। मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था। मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी भद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? मैं कहा, तो कह अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब
very, very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're Samay Rana, right?" मैं कहा, "Yes, sir." Can I have a seat? Have a seat. दरवाजा बंद करो यार. तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई. मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग. कह रहा है समय रहना. मैं कहा यस सर. कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी. मैं कहा हेलो. Ah, crazy. How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार. आप एकदम सर पे ही गए हो यार. क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार. मैं कहा तो nice. Of course, you have to. थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा. Okay. Members only वाला भेजूंगा आपको. Unreleased वाला. Thank you. Thank you. उनको मैंने फोन दिया. मजा आ गया पुलिस वाले को भी. इनको he was so sweet. He said, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो. ये आंसर हमें मीडिया में देना है. क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार. मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था. एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर. कह रहे मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि it's a very difficult question, man. As a comedian, do I apologize or not? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई. जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे. उन्होंने एक लाइन कही थी, "Every joke is a tiny revolution, and the revolution must never stop." पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े. तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता. अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से. जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक. है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. Solid line. हम 5% थे कश्मीर में पंडित. अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते. आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता. वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान. क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते. क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब. I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया. बोला बढ़िया बंदे हो तुम. क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर. मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे. मैंने 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा. मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में. I grew 10 times in this controversy, and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. This whole experience was an insane ride in my life, and probably the most important one. I am so glad it happened. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ छुआ. Yeah, real shit, man, real shit.
I want to do a wild fucking show. I'm gonna take away all your phones और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा contestant से, would you rather? Yeah, that was good. That was good. But you know what, man? I really enjoyed that. It was good to have an insight into everything that happened, and that's crazy to me. I feel like that was such an unfair experience for him. Like, he did not deserve that at all. He was not even the one who said it. And even if he was, it would still be unfair. How can you go to those extremes over a damn joke? If any of you guys were going to that extreme, like, come on, man. Come on, really think about it. Does it make sense? No. It's a bit weird, don't get me wrong. Like, it can be weird under certain circumstances. But at the same time, come on, man. People say stupid stuff sometimes. I might at some point watch, like, season 1 or some episodes from there. Maybe, I don't know. Maybe. If you guys want it enough, if enough people are watching, I might do that. I will continue with season 2 though. I'm going to continue with that, definitely. Hopefully he keeps doing big things. And I'm curious, you guys watching. Just a question. Like, would you rather? पीछे बॉम्बे पुलिस मेरे पीछे बॉम्बे पुलिस भागू मैं आगे मेरे पीछे बॉम्बे पुलिस